Hi guys, good morning and welcome to another episode of Coffee with Founders. I know there was some gap of last nearly 1 month and we could not bring this great program to you. But anyways, this is amazing time again. Why do we bring this? My aim is to bring this great founders, people who have struggled, the people who are touching the success and discuss their story. It's not about whether you would like to do a startup or would you like to do a regular job, but every time when you meet amazing set of people who have seen a great journey, it is great learning for all of us. तो इसमें फायदा हमारा ये होता है कि अगर किसी दिन आपने डिसाइड किया कि आप जॉब नहीं करेंगे और आप स्टार्टअप में जाएंगे, और आजकल तो स्टार्टअप की दुनिया ही है, तो क्यों नहीं हम इन फाउंडर्स से सुनते हैं। और ऐसा नहीं कि इन फाउंडर्स के दिमाग में ये बात नहीं आई कि उन्होंने रेगुलर जॉब करना चाहिए और अगर वो इंजीनियर्स हैं तो इंजीनियरिंग जॉब करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे ख्यालात आते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप डायरेक्टली जो भी फाउंडर्स हैं उनसे डायरेक्टली अपने स्टार्टअप के बारे में समझे, अपने स्ट्रगल के बारे में समझे, अपनी पूरी जो सक्सेस और फेलियर स्टोरी के बारे में समझे। और जिस तरीके से हम पिछले कई सालों से नए नए फाउंडर्स को आपसे मिलाते रहे, इस बार फिर हमने एक सेट ऑफ फाउंडर्स ढूंढे। बहुत ही यंग लोग हैं, बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडिया है और उनके मन में एक दुनिया को परिवर्तन करने की आग है, राइट? सो दे रियली वांट टू चेंज द वे द वर्ल्ड करंटली वर्क्स एंड दैट इज इन द area of fashion designing, right? Before I actually take you to the founders and introduce them to you, let me show a small video, though it is an introductory video for a program, but it gives you their story. So let me welcome Vijay and Shivang, Slathia. So great friends of mine, and Vijay joins me from. Hello, and Shivang Hello. joins me from Jammu. Can you hear me, because there was a minor glitch? Yeah. There was Yeah, a it's lag. Yeah. Uh, So guys, so, welcome to the Coffee with Founder. Hi everyone. hello. Thank you, sir, for having us on this show. I I think there think is there's some some lag, right? network issue or something. We'll just wait for 2 minutes. Sorry for the delay, everyone. Shivang, can you hear me? Yeah. Perfectly fine. Okay. So, Shivang, so I was talking to everyone about your great journey as to how you decided to be a fashion designer instead of becoming an engineer, right? And आप दोनों Yeah. ने मैकेनिकल में इंजीनियरिंग करी है, राइट, फ्रॉम विलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी?
मैंने I've done in mechanical. Vijay is from EC, Electronics and Communication. मतलब अभी जो Right. ये मेरे को एक स्टोरी समझनी है आपकी, ये जो लोग होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह करके भाई वो करते मशीन लर्निंग एआई एंड देन दे गेट इनटू दिस बिग जॉब जिनको उनमें करोड़ों वगैरह पैसे ऐसे कुछ मिलते हैं. सो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, विल स्टार्ट विद यू विजय, एज टू आई मीन हाउ डिड यू डिसाइड कि हमने ये कपड़े बनाने हैं. आई मीन टू सॉरी फॉर यूजिंग दिस टर्म, फैशन डिजाइन में अल्टीमेटली तो कपड़े ही बनते हैं ना. Right, right. Initially, I don't think it was all about making clothes or something, but I think we were too young when we realized that what we say an economic unit. And when you create a revenue stream, an economic unit, it's never same for you again. And that changed, I think, the way we perceive things. And if you want to do something, go get a job and do particular job for someone else, we starting doing it for ourselves. Is there any lag? No, I think everything's fine. So we started this journey in our college basically, and at that time there was a trend about quirky t-shirts, am I right? So we started from there. So we started a small company, a small venture, I'd say, called Humor Baba back in 2016-17. थोड़ा सा We शिवांग, sold. थोड़ा सा करीब आके बोले. आई थिंक वी कांट हियर यू क्लियरली. ओके. So we started that in 2016 and 17, and it was called Humor Baba. At that time, we were doing quirky prints on T-shirts, selling online. We just had learned about how to make a website for people say 18-19 साल के बच्चों को वेबसाइट बनानी आ गई 2016-17 में. उस टाइम पे इंटरनेट भी इतना होता नहीं था. जियो तो उसके बाद 2017 18 17 में आया था, तो 16 में तो इंटरनेट भी इतना नहीं था. तो वी हैड टू क्लॉक आर द मोबाइल डेटा यूज करके वेबसाइट बना के टी शर्ट डिजाइन बना के. एंड आई वाज हैंडलिंग द डिजाइन पार्ट, विजय वाज हैंडलिंग द वेबसाइट पार्ट. तो स्टार्टिंग में देयर वाज अ बuzz अराउंड इट थोड़ा, and then it grew from there. And from there we pivoted, we developed the idea, thoda improvisation kara. We saw what is sellable, what is not sellable, and a lot of business research got into it. And uske baad, everything started off in 2019-20. We got incubated, we got our first seed funding 2021 mein, and now अरे we are रुको रुको helping a रुको, lot. शिवांग शिवांग शिवांग, बहुत तेजी से Yeah. आगे निकल गया. अभी तो हमें बहुत सारी स्टोरी समझनी है यार. तुम दोनों तो कॉलेज में रूममेट थे ना, बिल्कुल. और So we जब were तुम not दोनों roommate actually, बीआईटी, but मतलब वहां पे जब हाँ. रूममेट थे तो कॉलेज वगैरह जाते थे या वहां पे अपनी फैशन डिजाइनिंग की क्लासेस शुरू करते थे कि चल भाई आज ये टी शर्ट बनाते हैं. Sir, तो हम. ऐसा रहता था कि मतलब मैनेज करते थे दिन में कॉलेज और रात को वी यूज्ड टू सेट एंड एक्चुअली रात को वहाँ पे ना वीआईटी में इंटरनेट भी बंद कर देते हैं, तो हमको मोबाइल डेटा सेव करना पड़ता था उसको. इट वाज वेरी कॉस्टली एट दैट टाइम, लाइक यू हैव टू पे 400 रुपीज फॉर 1 GB. वो स्ट्रगल हमको अभी भी याद है, लाइक हाउ वी यूज टू अपलोड डेटा डाउनलोड एंड वी हैड अ लिमिट कि भाई इंस्टाग्राम वगैरह कुछ नहीं कर सकते, रात को डिटेल करना है. वाह. तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. बट मुझे एक चीज, मुझे अभी भी वो मिस्ट्री नहीं समझ में आई कि भैया इंजीनियरिंग करी, माँ बाप ने पैसे से पढ़ा पढ़ू के इतना बड़ा इंजीनियर बनाया, तुमने इंजीनियरिंग की जॉब क्यों नहीं करी. सर देखो, हाँ. आई आंसर दिस. या शिवांग. इंडिया में ना ऐसा है ट्रेंड कि पहले आपको 12th या 10th क्लास करनी है, फिर 12th करनी है, उसके बाद इंजीनियरिंग करनी है, एंड देन यू फिगर आउट कि व्हाट यू हैव टू डू इन लाइफ. तो मैं तो कहूंगा जो ये बीटेक इंजीनियरिंग का जो फाड़ चलता था 2016-17 में, अभी भी चलता है, आईटी जेई एंड ऑल. तो दिस इज जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड कि क्या है मार्केट में, आपको क्या करना है दुनिया में. एंड व्हेन यू गो इनटू एन इंजीनियरिंग कॉलेज, थोड़ा एक्सपोजर भी मिला हमको कि भाई सिर्फ ये नहीं है, दुनिया में और भी बहुत चीजें हैं करने को. 11th-12th तक हमको बस पता था इंजीनियरिंग करनी है और जॉब करनी है. सो व्हेन वी वेंट आउट, एक्सपोजर मिला, पता लगा कि भाई नहीं, स्टार्टअप भी होते हैं, कुछ ये भी कर सकते हैं. फैशन एंड मी बीइंग डिजाइनर, तो डिजाइन का थोड़ा सा आ गया वहां से. तो एक्सपोजर की बात है सर सारी. बाहर जाके एक पर्सन को एक्सपोजर मिलता है, एंड देन यू नो शिफ्ट टू अ पार्ट वेयर यू आर मेंट टू बी. Right, right. So, but matlab, but did you have any kind of a formal training to become into a fashion designing world? I mean,
मैं मतलब मान लो कि अगर मैं कल सुबह डिसाइड करता हूँ कि भाई मुझे भी कुछ ऐसा कुछ करना है, तो मतलब डज इट रियली टेक दैट काइंड ऑफ एफर्ट कि लोग एनएफटी वगैरह में जाते हैं यार, वो वहां जाके ट्रेनिंग लेते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, और उसके आगे फिर और जाके एडवांस कोर्सेज करते हैं, तब जाके कहीं डिजाइनर बनते हैं। तुम दोनों ने इंजीनियरिंग करते करते कमरे के अंदर बैठ के क्लासेस से बंक करके you decided to create firstly a company and then to create a fashion brand. I mean, this is a great story. तो मतलब ऐसे ये कहाँ से आता है? मतलब you were बचपन में भी ऐसे कुछ करते थे क्या? आर्ट वार्ट ड्राइंग में 100% नंबर आते थे? सर डिजाइनिंग का तो हमने काफी पहले से स्टार्ट करा था, फर्स्ट ईयर में कॉलेज में थे। तो एक स्टोरी बताता हूँ। तो हमारे कॉलेज में एक पोस्टर कुछ प्रोजेक्ट होता था, एवरीवन नीड्स टू मेक पोस्टर्स। तो पूरे फर्स्ट ईयर का बैच का हर बच्चे को पोस्टर बनाना होता है। तो हमने कहा कि यार सबको पोस्टर बनाना है। तो हमने ना अपने रूम के बाहर एक ऐसे चिपका दिया छोटा सा कि ऑल काइंड्स ऑफ पोस्टर्स एंड डिजाइनिंग इज डन हियर एट अ नॉमिनल कॉस्ट। तो वहां से सर आइडिया सारा स्टार्ट हुआ ऑफ डिजाइनिंग स्टफ एंड गेटिंग पेड फॉर दैट। तो जब एक बार हुआ ना वो, फिर वो उसके बाद रुका नहीं कभी अभी तक। So एंड anyway, let me first also introduce your brand called House of Babas, और हम इस पे बात करेंगे कि ये नाम बड़ा अच्छा है, House of Babas, right? So House of Babas, as you say, is a sustainable lifestyle community for the future, right? You're not selling a clothing, you're creating a community, and then you say you innovate, leading technologies in the field of fashion, shopping to create a consumer product. You want to create that experience of buying also, not only creating the fashion but experience of buying. And you say you're end-to-end sustainable fashion company, right, from say sourcing, production, packaging, and currently HOBS is also more sustainable than any of these fashion brands. So that is great to know. So first, let me summarize this, right? Firstly, you are a fashion brand, then you are a youth icon, then you are going to create a community, देन यू आर सेइंग हम एक 100% सस्टेनेबल प्रोडक्ट है। ये विजय, मुझे आप बताओ कि पहले तो ये कम्युनिटी क्रिएशन क्या है, मतलब क्या करना चाहते हो ये? जैसे शिवांग ने बोला, इट वाज फर्स्टली लॉन्च्ड एज humorbaba.com. So we realized that when it was all about customization, people like their own art and everything. So we were selling fandom to them. Basically any merchandise that will have a fandom जो लोगों को पसंद आता है कि भाई मेरे को बैटमैन पसंद है, they'll go for it. बट जब हम इस बड़े एस्पेक्ट पे आए कि दैट वी वांट टू क्रिएट समथिंग दैट हैज अ बिगर इम्पैक्ट एंड इज आल्सो अ सस्टेनेबल वेंचर इन फ्यूचर, so we thought, why not make our customers our fans and make a cult of people who are actually conscious about environment. And in India, it's not like everyone is conscious. So we wanted to create the fashion very, very affordable and very cool. Like it should sell itself. And sustainability is one aspect that will go with it. We'll make a community of people who will take initiative and take part with us, and will go with this brand to be more successful. तो ये हमारा एक नहीं तो विजन मतलब है कि अभी जब हमें हम सस्टेनेबल बोलते हैं तो मतलब आपका सोर्सिंग क्या है, मतलब व्हाट एग्जैक्टली इज द रॉ मटेरियल? सस्टेनेबिलिटी आई एम श्योर यू वुड बी क्रिएटिंग आउट ऑफ नॉट रेगुलर मटेरियल. So शिवांग, कैन यू आंसर दिस? I'll answer this. So sustainability is we are an end-to-end sustainable fashion brand. अगर आप if you look at our business, so right from the sourcing to production to distribution, we are end-to-end sustainable fashion brand. All the sourcing is done. We require recycle. We basically recycle fabrics and then we make products out of them. So we collect waste fabrics, waste textile waste. तो वो सब भी कलेक्ट, उसको हम प्रोडक्शन करते हैं, वी मेक फैशन आउट ऑफ इट. सो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट वी डू. अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, जो हमारी पैकेजिंग है, एवरीथिंग इज 100% बायोडिग्रेडेबल, 100% सस्टेनेबल. हमारा जो पैकेजिंग है उसको, जब द टी शर्ट है सपोज, द टी शर्ट के अंदर जो टैग होता है, जो टैग जो टी शर्ट के साथ आता है, यू कैन टीयर इट, यू कैन सो इट इन द सॉइल एंड हाँ, इल वो ग्रो हमने अप. एक मिनट शिवांग, तो पहले तो आप जो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स है वो प्लास्टिक से बनाते हैं, राइट? यस यस और यस. आप जो थ्रो अवे कॉटन है उनसे थ्रो बनाते हैं? कॉटन. अच्छा, मतलब यस. अगर मैं अपनी पुरानी टी शर्ट, ये तो खैर नई वाली है आर्ट ऑफ वर्किंग की, लेकिन अगर मैं कोई पुरानी टी शर्ट भेजूं तो उसको भी आप रिसाइकल करते हैं?
हाँ जी सर, we are working on that end-to-end recycling circular economy basically. So we Right. are sourcing clothes and then remaking and reselling it into the market. So it's a circular economy that we're Right. following. And then you also mentioned that your packaging is all biodegradable firstly, right? और आपने बताया कि उसके साथ जो टैग आता है जिसमें जैसे मेरे मेरे टैग में एक्सेल लिखा होता है वही मुझे नजर आता है उसके अंदर कि इसको एक्सेल को कैसे लार्ज करना है वापस। लेकिन उस टैग को अगर हम जमीन में या किसी पॉट में लगा दें तो ऐसे पौधे वौधे से निकलते हैं क्या? Yes, yes, yes. So for मतलब क्या निकलते हैं? every product we sell, we actually plant a tree. ऐसे बहुत लोग कहते हैं, अरे the मतलब lot of क्या है, मतलब companies saying. बहुत ही बढ़िया कर दिया। मतलब शिवांग, मतलब किसी को अपने घर वालों को समझाना हो तो बोले कि मैं टी शर्ट नहीं खरीद रहा, मैं तो एक्चुअली पौधा लगाने जा रहा हूँ, है ना? तो हाँ इसीलिए सर, मुझे टी बिल्कुल। शर्ट खरीदना है। तो भाई ये बता देना, कई बार मेरी वाइफ से मेरी बड़ी लड़ाई होती है, वो मुझे ज्यादा कहती है आप पुराने वाले तो पहन नहीं रहे हो, नए क्यों खरीद रहे हो? तो बता देंगे यार, और क्या है, गार्डन में प्लांट लगाने 4 टी शर्ट तो चाहिए चाहिए। तो दैट्स ए ग्रेट ग्रेट आइडिया सर, यू नो दैट्स अमेजिंग। मुझे और भी चीज समझनी है। उपदेश Kumar Sharma from YouTube is asking us, so how did you set your goals and develop the discipline to follow the same, right? So he said पहले गोल कैसे सेट किया, फिर आपने डिसिप्लिन कैसे किया, और उसके बाद गिविंग एक्स्ट्रा 10 to 15 आवर्स ए वीक बिसाइड योर स्टडीज। मतलब बहुत ही जेन्युइन सवाल है यार। आपको नंबर भी लेने होते हैं और उसके बाद में पढ़ाई भी करनी होती है, पास भी होना है। ऐसा नहीं ना कि आप सोच के बैठ गए कि हमने एक स्टार्टअप करना है और उसमें हमने फैशन डिजाइनिंग करनी है, तो पढ़ाई भी करनी। और आपने, आई एम श्योर उन्होंने अच्छे नंबर से ही पास किया होगा। पूछ नहीं रहा हूँ परसेंटेज कितनी थी, लेकिन चलो श्योर है वीआईटी में थे तो पास ही किया होगा। तो ये बताओ कि हाउ डिड यू मैनेज टू गेट दैट एक्स्ट्रा टाइम टू डू ऑल दिस? So विजय, Vijay, yeah. विजय विजय प्लीज। तो एक्चुअली देखा जाए तो टाइम नहीं होता था। मतलब हम लोग, मेरे को अभी भी याद है, तो वीआईटी में एक रूल है दैट यू हैव टू विजय मैनेज थोड़ा, विजय 75%। कम क्लोजर टू द माइक सो वी कैन हियर यू बेटर। या तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट है कि दैट यू हैव टू मेंटेन 75% अटेंडेंस मिनिमम टू अपीयर इन एन एग्जामिनेशन। ओके। तो हमारी अटेंडेंस ना 74 होती थी ना 76। वो 25% जो होता था, हम वो 25% में मैनेज करते थे कि 25% अटेंडेंस में ही हम ये कंपनी का सारा काम करेंगे, बस चाहे हमें कहीं बहुत ही बाहर जाना बदमाश है, किस्म के बच्चे चाहे। थे यार तुम लोग। हाँ, मतलब घर से पूछा जाता था कि मतलब व्हाई एग्जैक्टली 75, डोंट यू, कि मतलब तुमको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है या तो तुम 75 कर क्यों रहे हो, मतलब इसका रीजन क्या है कि यू एग्जैक्टली मेंटेन दैट पर्टिकुलर नंबर फॉर अटेंडेंस। तो वो इतना समझाने में आता नहीं था कि मतलब क्या कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बनाया भी नहीं था उस वक्त। ऐसा नहीं है कि देयर वाज अ वेबसाइट, मतलब बन गया था बट इट वाज नॉट ऑन दैट लेवल। बट वो 25% हम मैनेज करते थे कि हाँ ये 25% है अपने पास और इसका जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं तो वो हमने किया। नहीं तो मतलब ये कहने का मतलब वो दूसरी तरफ भी कैलकुलेट करते हो भाई, एक दिन क्लास एक्स्ट्रा कर लिया, अब अगले वीक में 2 दिन अपने पास फालतू पड़े, हाँ है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही चलता था। सुबह उठ के हम ऐसे होते थे, नहीं नहीं ये क्लास तो जानी पड़ेगी, वरना वो वीकेंड से पहले दिन जो हमें काम कहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, आउटिंग के लिए भी तुम्हें मिनिमम आउटिंग मिलती है। ऐसा नहीं कि मतलब तुम महीने की चले जाओ, ऐसे थोड़ा रूल्स अच्छे हैं वहाँ पे। सो वी यूज्ड टू लाइक, अगर फ्राइडे शाम को निकलना है, लास्ट क्लास नहीं करनी, और वैसे भी फ्राइडे ईव को ना इतना क्लासेस का रहता नहीं था, तो हमें लगता था वो एक स्लॉट है हमारे पास, अगर वो मिस करना है तो हमें क्लासेस उस तरीके से मैनेज करते थे कि ठीक है, ये क्लासेस भी होनी है, पढ़ाई भी होनी है और ये काम भी बराबर चलेगा। राइट। तो मुझे एक चीज बताओ, आई विल नॉट, लेट्स मूव टुवर्ड्स जॉब वर्सेस यू नो स्टार्टिंग स्टार्टअप्स, राइट? तो मतलब आपने, व्हाई डिड यू नॉट थिंक ऑफ अ रेगुलर जॉब, यू नो, आई मीन एट द एंड ऑफ द डे, मतलब पढ़े लिखे लोग हो यार, वीआईटी कोई आसानी से एडमिशन भी नहीं मिलता उसमें। तो जब मतलब ऐसा क्यों सोचा कि नहीं भाई ये हमारे काम की चीज नहीं है? और फिर मैं इससे रिलेटेड डीन ऑफ हार्वर्ड की भी स्टोरी सुनाऊंगा आपको। तो आप दोनों मुझे ये समझाइए, पहले पहले शिवांग एंड देन यू नो विजय, टू टेल मी दैट व्हाई डिड यू नॉट डू इंजीनियरिंग एंड व्हाई तुमने नौकरी क्यों नहीं करी? तुमने ये क्यों डिसाइड किया कि मैं स्ट्रगल करूंगा बिजनेस के अंदर? बॉस बॉस नहीं चाहिए मुझको कोई। हाँ सर, सर ये ना एक मेंटालिटी है कि मतलब इट्स नॉट कि डूइंग जॉब इज बैड और स्टार्टअप ही अच्छी चीज है, जॉब अच्छी चीज नहीं है। इट्स अबाउट द माइंडसेट। तो एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट होता है, तो अगर आप वो एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट जॉब पे भी लेके जाओ ना, यू विल एक्सेल अ लॉट। बट हमारे केस में ना थोड़ा ऐसा है कि ट्राई करा हमने कि टू गेट अ जॉब यहाँ, पर वो होता नहीं है, वो किक नहीं आती है, एंड प्लस वो मैच नहीं करती फ्रीक्वेंसी का। सपोज कोई बॉस हो, अब हमको बॉस बनने की आदत है, अब
तो अब कोई हमारे ऊपर बॉस सिंग करे तो वो ऐसे, मतलब क्या बताऊं आपको सर, अब वो मैच नहीं करता, रेजोनेट नहीं करते बेसिकली. Plus, it's a good thing doing a startup. It's tough. It's not easy, but we are here where we तो are. मुझे एक It's चीज बताओ, actually destiny. 4 साल में कौन से साल में डिसाइड किया कि हम नौकरी नहीं करेंगे और हम अब स्टार्टअप लगा देंगे? So पहले first साल में year में या sir, थर्ड ईयर first में? year में, first year में sir. ये भगवान में तो आई स्वेयर में तो तुम्हें आई कभी कोई थिंक फर्स्ट ईयर में तो डिसाइड किया, सेकंड ईयर में वी वेंट टू एन इंटर्नशिप इन डियाजियो. वहाँ पे क्या हुआ, तो वी हमने एक इंटर्नशिप साथ में ली थी. तो वहाँ पे देर वर सर्टेन वेज ऑफ डूइंग अ थिंग. तो हम वहाँ पे जाके ऐसे डिस्कस करते थे, यार ये ऐसे नहीं, ऐसे भी तो हो सकता है, ये ऐसे करते तो ऐसे करते तो. बट देयर इट इज नॉट अलाउड टू बी क्रिएटिव, इट इज अबाउट हाउ इज इट डन, यू लर्न इट एंड डू इट. तो हमें थोड़ा थोड़ा समझ आ गया था कि ठीक है, मतलब हमें थोड़ा अपने ढंग से करनी है चीजें, बिकॉज वी कांट स्टॉप थिंकिंग कि मतलब अच्छा एक ही तरीके से होती है चीजें. देयर कुड बी एन नंबर ऑफ वेज एंड वी वांटेड टू एक्सप्लोर दैट. So I think startup was one path that we could explore more towards what we think can also be done. Okay, so just to understand one thing, I mean, as you know, I also quit army to come into the corporate. From the corporate, I came into the startup ecosystem. और मैं मतलब अगर मैं देखूं, मैं भले सोनी टीवी पे नहीं हूँगा, लेकिन कम से कम 10 से 12 स्टार्टअप का शार्क टैंक इंडिया टाइप प्रोग्राम डेली करता हूँ. उसमें से कई की मेंटरशिप करता हूँ, कई को रेडी करता हूँ फंडिंग के लिए. एंड सम ऑफ देम लाइक वी आल्सो मेट थ्रू दैट प्रोसेस, and you are also moving towards a successful funding stage. So tell me one thing: if someone has to start a startup, so Vivek Srivastav is asking that in case you have to start as your own venture and get into entrepreneurship, so what are your top initial things which you should consider? Shivang, आपसे शुरू करें. So consider करना is like, देखो, first you need to have an idea कि करना क्या है. वो बहुत important है, क्लियर विजन होना चाहिए. हमने जो भी सीखा है, इट्स मोर ऑफ अ रॉ टैलेंट या स्ट्रीट स्मार्ट है. हमने कोई MBA BBA करके बिजनेस नहीं समझा. सो सब कुछ करके कॉस्ट ऑफ लर्निंग थी बहुत ज्यादा. लॉट ऑफ मनी वेंट इनटू इट, अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, अ लॉट ऑफ टाइम वेंट टू इट, एंड ये सब सीखा फिर. तो एक चीज ये बहुत अच्छे से सीखी है कि विजन और क्लैरिटी ऑन व्हाट यू वांट टू बिल्ड इज इंपॉर्टेंट. Right. नो मैटर थिंग्स आर गोना चेंज. 2 महीने बाद, 6 महीने बाद आइडिया थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, विजन थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, एवरीथिंग पिवट हो जाता है कुछ ना कुछ ओवर, लेकिन स्टार्टिंग के दिनों में आपके, लाइक फॉर द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर. पर एक क्लियर विजन होना जरूरी है, और जो एक टीम होना ना, टीम भी होना बहुत जरूरी है. यू कांट डू एनीथिंग अलोन. पहले हमें लगता था कि हम 2 लोग मिलकर सब कर लेंगे, ट्राई करा पर नहीं होता है. यू नीड अ टीम, यू नीड अ विजन, एंड उसके टूवर्ड्स चलने की हसल होनी चाहिए. 3 चीज. So that's what I believe you need to start a company. Okay, what about you, Vijay? I mean, what is your idea कि स्टार्टअप में हमें अगर शुरू होना है तो कैसे, मतलब क्या तैयारी करनी पड़ती है, या what are the ingredients for a good startup? I absolutely agree with Shivang. First, like he has said everything. Adding to that, first of all, there's a mindset ki job ya startup. So I don't think there's anything wrong with the job or there's anything particular favorable towards startup, क्योंकि शायद startup में मेहनत ज़्यादा ही है और रिस्क भी ज़्यादा है, हालांकि रिवॉर्ड्स भी ज़्यादा है. बट अगर तुमको मालूम है कि तुमको कुछ करना है, तुमको कोई प्रॉब्लम मिल गई है, रियल प्रॉब्लम, इट्स अ Right. रियल डील. पीपल रन बिहाइंड टेक्नोलॉजी. कभी कोई टेक्नोलॉजी आएगा, पीपल लाइक इफ आई डू दिस टेक्नोलॉजी समथिंग लाइक दिस आई विल डू. So that won't happen if you really find a problem, and when you wake up in the morning you have a purpose to solve it and you enjoy doing it. ऐसा नहीं है कि मतलब अब प्रॉब्लम सुबह उठ के सुबह सुबह प्रॉब्लम ही सॉल्व करनी है तो why will I wake up कि हाँ भाई सुबह उठ के प्रॉब्लम है. बट अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व, हाँ मतलब चलो मैं सुबह उठ रहा हूँ, एंटरप्रेन्योर क्या क्या कहते हैं लोग कि प्रॉब्लम सॉल्व करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो. समवन वेक्स अप कि मेरे को प्रॉब्लम ही सॉल्व करनी है तो व्हाई विल आई वेक अप टू दैट. बट अगर मेरे को मैं वो पर्पस ड्रिवन हूँ कि हाँ मुझे ये करना है, एंड आई कैन क्रिएट अ सिस्टम विच कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड ऑल्सो कैन सस्टेन मी एंड माई टीम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई थिंक a person should go towards it, not all in. If you are like a student you can devote some time to it, okay, because you don't know actually if it's gonna happen or not, और तुमको मेहनत लगेगी.
But just don't go in like, if I start a startup, I'll be successful. If I will not do job, that will be. I think everything has its own importance, and you should know when actually to go all in, and when you know that you have achieved that level, this is now what I want to do, and this is where I can go. Right. एक So चीज देखिए, एक चीज वन थिंग टू ऐड ऑन टू दिस कि whatever प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन आपने बनाया है वो सोल्यूशन शुड बी इट शुड ऐड वैल्यू टू द पर्सन बाइंग इट. अगर वो उसकी लाइफ में कोई चेंज नहीं लेके आ रहा ना तो उस सोल्यूशन का कोई फायदा नहीं है. तो दैट इज व्हाट इज एन एंड टू एंड स्टार्टअप आइडिया पूरा. देखिए, my understanding of any entrepreneurship is like this, that देखो, I started my career as a student in MBA, right? I quit MBA and came to the Indian Army. I quit Army after 20 years and came to the corporate, and I was a senior vice president in a very large multinational company. I decided to come out and start my own ventures, and now whether they are earning big amount of money or not, but definitely there are 4 ventures currently working. But I love this ecosystem of startup. There is youth struggle, there are stories, there are success stories, there are failure stories, and then you meet array of exciting young people. And I'm not saying that young means by age, young by heart. Like I may not be of same age as say Vijay is, but I'm definitely younger than him in terms of enthusiasm or excitement, and I learn so much more than they would be learning at this stage, right? So this is a very exciting world, there is no doubt, but बहुत रिस्क भी है. रिस्क लेने की क्षमता भी होनी चाहिए और आपको थोड़ी हद तक एक प्रिपरेशन करनी. तो किसी ने मुझसे सवाल पूछा था कि व्हेन यू लुक इनटू अ स्टार्टअप एंड आप उसमें एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो कैसे आप उसको जज करते हैं. तो मैंने बेसिकली फंडामेंटली विजय एंड शिवांग आई क्रिएटेड दिस स्मॉल टेम्पलेट वेयर वी डिस्कस अबाउट दीज 4 एस्पेक्ट्स ऑफ ए गुड स्टार्टअप. आइडिया कितना बढ़ गया है. any idea needs to be a disruptor. So does it challenge. ये नहीं कि जोमेटो का चैलेंज नहीं हो सकता कि जोमेटो और स्विगी ने एक ऐसा सोल्यूशन दे दिया जिसका कोई सोल्यूशन आगे बढ़ नहीं सकते. You can always find problems in the current system and then create a solution to that. There is always a second mover or a third mover advantage also available in startup. You may have a great idea and you have a first mover advantage, but ऐसा नहीं हुआ कि आपके पेटीएम के बाद भारत पे नहीं आया, राइट? और जोमेटो के बाद स्विगी नहीं आया. पहले एक फूड पांडा भी होता था, अगर आपको याद होगा तो, राइट? तो ये ऐसे ऐसे तरीके से चीजें डेवलप होती हैं. तो आइडिया बहुत बढ़िया होना चाहिए. दूसरी बात ये होनी चाहिए, इज इट स्केलेबल विद स्पीड. मतलब आप आज अगर 100 कंज्यूमर है तो आज के 10 दिन के बाद में 10,000 कंज्यूमर होने चाहिए. थर्ड पार्ट विच आई अंडरस्टैंड इज हाउ गुड इज द टेक्नोलॉजी, बिकॉज स्केलेबिलिटी विल कम फ्रॉम टेक्नोलॉजी. It doesn't happen with Excel sheets or just sitting with papers. It has to come with technology. So you must bring in और आज की दुनिया में I speak about future of work. It is very important to bring technology into whatever you're doing. It helps you improving your work. It also improves your scalability and things like that. Fourth and most important is how good are the founders. And I'm not saying कि आपको वहाँ IIT का IIM का, और मैं सही बताता हूँ विजय शिवांग, अभी जो मैंने कुछ स्टार्टअप्स देखे हैं, दे आर नॉट इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, और कुछ ने तो ग्रेजुएशन भी नहीं की भाई, पढ़ाई नहीं कंप्लीट करी, और टेक फर्म का स्टार्टअप फाउंडर है. तो हमने कहा भाई हमारे यहाँ तो इंडिया में तो हम ये कहते हैं अगर तू IIT से नहीं आया और IIM से नहीं आया तो तू आगे क्या करेगा, बता. तो नौकरी भी नहीं मिलेगी तेरे को, तो स्टार्टअप चला रहा है, ठीक है. लेकिन व्हाट पाथ ब्रेकिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, अमेजिंग. And because that technology has, और मैंने देखा यार अल्टीमेटली इवन IIM and IITs में भी देखा, वो जो बैंकर है वो क्या था, वो बैंकर ने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करी IIT दिल्ली से, एक ने बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग करी. तो मैंने उससे यही पूछा कि केमिकल इंजीनियरिंग और बैंकिंग का क्या रिलेशन है, कुछ नहीं है, ठीक है. तो इफ अ गाय हु इज डूइंग वेल इवन इन IIT इन अ डिफरेंट फील्ड डिसाइड्स टू कम आउट एंड डू समथिंग एल्स. जिस भाई ने जोमेटो और स्विगी चलाया, क्या उसने वो अपनी ग्रेजुएशन में या BE में ये सब्जेक्ट चलाए थे क्या? नहीं चलाए थे ना. अल्टीमेटली ही क्रिएटेड अ सॉल्यूशन with despite being an engineer or graduate in a particular stream. So these are 4 ingredients which I generally found to be great for any startup, right?
तो आप मुझे ये बताइए कि व्हाट आर दी स्टेप्स, सपोज इफ आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, तो व्हाट आर दी स्टेप्स यू डिसाइड? आइडिया एक हो गया, आपने बोला एक आइडिया बड़ा अच्छा सा होना चाहिए, उसके आगे क्या? सर आइडिया के आगे लर्निंग अबाउट द लीगैलिटीज इन इट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो भी लीगल स्टफ है, कंपनी रजिस्टर करना और इक्विटी डिवीजन, ये सब बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए पहले। काफी इश्यूज आते हैं नहीं तो बाद में आपको ये नहीं है वो नहीं है, तो लीगैलिटीज प्लस छोटा मोटा पढ़ने का, लर्न करने का सब चीजें हैं, लाइक फाइनेंस थोड़ा बहुत आना चाहिए। यू नीड टू नो अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन इन योर कंपनी। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही फ्रेश स्टार्ट करते, आपको पता नहीं है, एंड यू रिक्रूट पीपल फॉर डूइंग द जॉब एंड यू इटसेल्फ डोंट हैव द आइडिया कि क्या करना है। तो आइडिया, टीम, लर्निंग, और विजय और बताओ। हाँ, Yeah, विजय बताओ। absolutely. Knowledge, yeah, that's how we're going to think. So हाँ, knowledge is one thing. कि मतलब you just can't go and मतलब ठीक है, it's always ऐसे दिखाया जाता है, मतलब whenever we of funding is raised पर बोलते हैं this guy from this college or something, so but behind the scenes actually में क्या होता है वो I don't think कभी मतलब ऐसे बताया जाता है। Even मैंने भी न्यूज़ में नहीं पढ़ा था, but when we actually went into it, there's quite a lot that you have to know. कि मतलब ठीक है, टर्म शीट क्या होता है, कैसे मतलब हाउ हाउ कितना स्टेक तुम दोगे, हाउ मच विल यू रेज, वैल्यूएशन कैसे होता है, मतलब दीज आर ऑल द थिंग्स दैट नो, और इंडिया में कोई बिजनेस करना आपको सिखा नहीं रहा है। बट वन थिंग आई लाइक अबाउट दिस एरा इज दैट इट इज एन इंफॉर्मेशन एरा। ठीक है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन, मतलब यू कैन फाइंड स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड के कोर्सेज ऑनलाइन देयर, दैट इज अ गोल्ड माइन ऑन यूट्यूब, someone goes and study it. So I think the one thing that hurt us the most is internet. ठीक है, मतलब इंटरनेट पे वी वेंट एंड वी स्टडीड व्हाट वी वांटेड टू, कि मतलब वी अक्वायर्ड द नॉलेज व्हाट वाज मिनिमम रिक्वायर्ड टू गो फॉर इट। उसके बारे में थोड़ा अवेयरनेस, बाकी यू कैन कंसल्ट विद द एक्सपर्ट्स, मतलब थोड़ी कंसल्टेंसी भी जरूरी है, यू कांट गो बिकॉज अदरवाइज यू विल डेफिनेटली गोना मेक मिस्टेक्स, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स, बट देयर इज अ कॉस्ट ऑफ लर्निंग, लाइक टू एवरीथिंग यू मेस अप विद। सो आई थिंक ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने गलतियां नहीं करी, काफी गलतियां करी है, बट दैट इज द जर्नी, दैट इज द प्रोसेस, दैट्स हाउ यू लर्न। बट नॉलेज इज वन थिंग, विदाउट नॉलेज it will be very difficult for you to succeed. राइट। सो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस, बिफोर आई टेक दोस क्वेश्चंस, सी माय अंडरस्टैंडिंग इज, देखिए सबसे पहले इफ यू हैव एन आइडिया, ग्रेट, बट यू गॉट टू रियली रिसर्च दैट आइडिया। ठीक है, Right. कि पहली चीज वो डिसरप्शन जो है वो दुनिया को उसकी जरूरत है कि नहीं है। ठीक है, अगर मैंने कुछ ऐसी चीज बनाई जिसको दुनिया को जरूरत ही नहीं है तो वो बिकेगी भी नहीं, और वो बिकेगी Right. नहीं तो फंडिंग होगी नहीं। तो हमें एक ऐसा डिसरप्शन लाना है जो कि आपको वो चेंज कर दे, जो कॉन्सेप्ट अभी चैलेंज करता है। और बहुत सारी चीज ऐसी होती है जो दुनिया में जो जो एक्चुअली सक्सेसफुल कंपनीज हुई हैं विजय, you got to understand, they challenge the way you thought. Imagine, when Airbnb came. So how do you bring home space for rentals? एक सैन फ्रांसिस्को में एक इवेंट होता है, उस इवेंट में होटल्स बहुत महंगे हो जाते हैं, एंड दीज टू गाइज जैसे यार हम ऐसे करते हैं, टेंट हाउस से गद्दे ले आते हैं और हर कमरे में गद्दे लगा देंगे और अपने को जो है उनको ब्रेकफास्ट दे देंगे, तो एयरबीएनबी बना देंगे। राइट, और उस वजह से, और वो एयरबीएनबी का भी एयर जो है ना, वो एयर वाले गद्दे थे, इसलिए वो एयरबीएनबी है, बेड एंड ब्रेकफास्ट। राइट, दैट नो वन अंडरस्टैंड व्हाई एयरबीएनबी। राइट, और वो एक हमारे ये जो आइकिया है, वो भाई साहब उन्होंने कुछ फर्नीचर शुरू किया, जो उन्होंने देखा कि उनको रेगुलर फर्नीचर बेचने के लिए उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मार्केट इज नॉट अलाउइंग, सो ही क्रिएटेड सेल्फ असेंबली फर्नीचर। राइट, similarly the story of Zara. So but the new startups are challenging the way regular things, so it should challenge the way current thing is running. Second point is research, research, research फंडामेंटल है, मतलब आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, गूगल करना पड़ेगा। जितनी सक्सेस स्टोरी है उससे ज्यादा फेलियर स्टोरी होगी उस कॉन्सेप्ट के ऊपर। आपको कितने स्टार्टअप ऐसे देखने पड़ेंगे जो आके बंद हो गए, उनके जो लेसन्स हैं वो आपको लर्न करने पड़ेंगे कि ये मिस्टेक मैं नहीं करूंगा। तो आपको पहले काफी डेटा और ये सब चीजों पे काम करना चाहिए। और जैसे लाइक मेजर Garg is asking that how did you manage the initial investment of funding for production, marketing and branding? तो एक और जो अदर एस्पेक्ट है भाई, पैसा भी इकट्ठा करना पड़ेगा। ठीक है, और Right. फिर टीम भी इकट्ठी करनी पड़ेगी। देख शिवांग ने पहले बोला कि दैट वंस यू गेट द टीम
then all the legal matters of the team needs to be sorted. और ये नहीं अरे मेरा विजय दोस्त है, बचपन का यार है, सब कुछ ठीक रहेगा, ऐसा नहीं. हर चीज को एक कॉर्पोरेटाइजेशन करना पड़ेगा. You can't have a startup which does not have a future corporate structure, right? So these are also important. So idea is important, little bit of funding. और funding में ना बहुत डरने की जरूरत नहीं है. आजकल लोग स्टार्टअप से सोनी टेलीविजन के आने के बाद तो बहुत ही ज्यादा एक्साइट हो गए. शार्क टैंक में लोग चेक साइन करके वो देते. तो जैसे अपन ने जब पिच डे किया था विजय, तो लोगों ने उसमें भी पूछा था कि सर चेक आज ही मिल जाएगा. मैंने कहा ड्रामा happens on television. So even the venture capitalists or private investors and everyone will have multiple discussion with you before वो अपना पर्स खोलते हैं, right? So these are the things. So tell me about what the major is asking. How did you manage initial investment oblique funding for production, marketing and branding? तो सर स्टार्ट हमने ऐसा करा लाइक हर कॉलेज के बच्चे को वी गेट पॉकेट मनी 3-4 हजार 5 हजार रुपये हमको घर से मिलता था. तो उसमें ही वी नीड टू सस्टेन द बिजनेस प्लस आवरसेल्व्स. पर हमारे केस में एक चीज काफी अच्छी होगी कि हम स्टार्टिंग से फ्रॉम डे वन हमने रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट कर दिया, सेल्स होना स्टार्ट किया, थोड़ा प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया. ऑन एन एवरेज स्टार्ट में हमारा लगा लो कोई 1,000 रुपए दिन का प्रॉफिट आता था, 1,000 समथिंग. तो हमारा क्या होता था कि हम जनरली मेस में खाना खाते थे, तो दैट गॉट रिप्लेस्ड टू पिज्जा पार्टीज एवरी डे. रोज 1,000 रुपए कमाएंगे और उसमें से 300-400 रुपए का पिज्जा खा लेंगे. तो और जो पैसे थे वो घर से आते थे 4-5 हजार, उसमें से 2,000 अपने लिए आगे पीछे खर्चे के लिए, बाकी 2-3 हजार मार्केटिंग में लगा दिए, वेबसाइट खरीद ली. तो सब कुछ वैसे थोड़ा बहुत बूटस्ट्रैप करके स्टार्ट करा एंड थोड़ा बहुत रेवेन्यू आ गया. देन वी गॉट सेल्स, वी गॉट in the first 1 week or the first 2 weeks I remember we generated roughly 60,000 rupees, which was a lot for college kids जिनको महीने के 3,000-5,000 रुपए मिलते हैं. तो उन्होंने 2 हफ्ते में भाई 60,000 रुपए कमा लिए. तो यू कैन अंडरस्टैंड क्या माइंडसेट रहा होगा कि हमने सोचा भाई ये तो बहुत ही मतलब बढ़िया चीज हो गई. तो उस टाइप से सर. वाह. तो मतलब ऐसे मतलब जो हमारा थॉट प्रोसेस था कि आपको कम से कम 8-10 लाख रुपए पहले हाथ में चाहिए और उसके बाद शुरू. तो व्हाट आई कैन इन्फर आउट ऑफ यू इज कि बहुत छोटे से शुरू करें ना. मतलब हर चीज के लिए एरोप्लेन की जरूरत नहीं होती. दूसरी बात, लाइक इन वन ऑफ द आर्ट ऑफ वर्किंग आर्ट वर्क विच वी क्रिएट, उसमें हमने लिखा भी था स्टार्टअप इज ए प्लेन विच यू आर बिल्डिंग व्हाइल फ्लाइंग, राइट? मतलब आप जब अपना बिजनेस कर रहे हैं तब भी स्टार्टअप डेवलप होता है. ऐसा कोई परफेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता कि अब हमने ये पूरी कंपनी लॉन्च कर दी, अब हम लीगली, ऑपरेशनली, फाइनेंशियली बिल्कुल अब सही हो गए हैं तो अब लॉन्च कर सकते हैं. ऐसा कहीं कॉन्सेप्ट नहीं है. आपको कंटिन्यूस, इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस. किसी एक हमारे इसमें विपुल कसेरा को हमने बुलाया था इन वन ऑफ द एपिसोड्स ऑफ कॉफी विद फाउंडर्स, and he is the founder of team I forgot the name of the organization, but he also was saying that ultimately you create a prototype and it is a evolutionary prototype. मतलब आप उसको धीरे 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 डेवलप करते हैं. आप देख रहे हैं ना वो ओला वालों को, अब ओला वाले जो है कैब छोड़ के स्कूटर पे आ गई है ना, मतलब वो डेवलप तो हो ही रहे. ठीक है. अब वो बात अलग है कि हम ये कहना चाहते हैं कि कुछ स्कूटर में आग लग गई है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो उसका सॉल्यूशन जरूर निकाल लेंगे. एंड यही स्ट्रगल स्टार्टअप्स की रहती है, राइट? एंड देयर आर फ्यू मोर क्वेश्चंस. लेट मी टेक दिस क्वेश्चंस. एंड अब ये बताइए, हाउ डू यू टॉक अबाउट मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग? ये हाउस ऑफ बाबास की स्टोरी सुनाओ पहले तो. ना भाई बाबास क्या है? मतलब कहीं होता लोग होता है कि बहुत ही कोई फ्रेंच नाम ले आते हैं, कोई अमेरिकनाइज इंग्लिश नेम ले आते हैं, या वो बिकॉज यू आर सस्टेनेबल तो एक संस्कृत टाइप नाम ले आते हैं ना, वो पत्तों से फूलों से ऐसा कुछ कनेक्ट कर देते हैं. तो हाउ डिड यू मैनेज टू कॉल इट हाउस ऑफ बाबास? या विजय. Yeah, go ahead. So as we said initially, we launched a website named as humorbaba.com. तो तब आइडिया था कि we'll make quirky fun t-shirts. So like who is the superior form of something that gives you something कि मतलब Baba is one concept. So it was humorbaba.com. तब we were selling fandom. But later when we got this idea to form a sustainable community for the youth, a D2C brand, lifestyle brand, we thought on it. एक सोच थी उसके पीछे कि अगर एक कल्ट होता है, मतलब एक हमारा कम्युनिटी होती है,
So what do we call these people? Who are they? They're conscious and they care about environment. And it also had a urban desi vibe to it. We wanted it for youth. So we said, why not making it? Where are you if not at House of Babas? कि अगर तुम यहाँ नहीं हो तो तुम कहाँ हो? So we call people who belongs to our community as Babas, and the community is where House of Babas, and giving it a very urban desi vibe for the youth. कि हाँ, it's also catchy hops, and yeah, that's what we thought when we were founding the name. एंड ये बाबास वाला थिंग ना, ये यूथ में ना काफी अच्छे से कैचअप हो जाता है, हाँ मतलब क्योंकि सब लोग हाँ और बाबा, बाबा क्या हाल है, बाबा हाँ क्या हाल बाबा है, क्या हाल है, बाबा। बस वही। हाँ, तो सही उसी सही। से बिल्ड हो जाती है, टीम बिल्ड हो जाती है वहां से। I know it is a very catchy name. So Grace Aurora is asking, and she says, "Hi everyone. I want to know when did you realize that you are doing something completely different from the rest of the world?" भाई मतलब ये बात तो माननी होगी कि हाउस ऑफ बाबा इज डेफिनेटली डूइंग समथिंग. नाउ यू आर अबाउट टू गेट योर फर्स्ट ग्लोबल ऑर्डर, राइट? दैट इज सो यू विल गेट इनटू एक्सपोर्ट्स आल्सो. एंड सस्टेनेबिलिटी तो देखिए क्या है ना, सस्टेनेबिलिटी इज दी थिंग. और अब मेरे को यार वो विजय और शिवांग, आपने कुछ नंबर्स दिखाए थे मुझको एक बार कि अगर हम लोग ये टी शर्ट बचाते बनाते हैं तो हमारा कितना पानी बचता है. वो तो अपने व्यूअर्स को अपन पहले समझाए ना बिफोर we listen to your answer for Grace. Yeah, so we are a sustainable brand and we aim to save these natural resources. तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम इज द कॉटन. कॉटन इज अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप. ठीक है, थोड़ा टेक्निकलिटीज में जाना पड़ेगा. तो क्या होता है कि जब भी आप कॉटन ग्रो करते हैं हम, तो उसके लिए अलॉट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, स्टेगनेंट वाटर, बहुत ज्यादा वाटर लगता है. एंड इन द प्रोसेस इज डाइंग में वाटर लगता है बहुत ज्यादा, उसमें केमिकल्स यूज होते हैं तो सॉइल को हार्म करते हैं, एंड नंबर ऑफ थिंग्स इन द होल सप्लाई चेन स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रोइंग द रॉ मटेरियल अंटिल डिलीवरी. तो इसको हमने स्टेप बाय स्टेप भी ब्रेक इट डाउन एंड इसको हम सॉर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं. तो से वन पेयर ऑफ टी शर्ट एंड जीन्स जो हम जनरली पहनते हैं डे टू डे में सुबह शाम दो टाइम, तो उसमें क्या होता है कि एक पेयर को बनाने में इट टेक्स 5000 लीटर्स ऑफ वाटर. 5000 liters of water is a lot of water. तो हम क्या करते हैं, वी रिसाइकल इट एंड वी सेव दैट अमाउंट ऑफ एक वाटर जो बाल्टी में 5000 लीटर एक बाल्टी पाना. एक बकेट में कितना आता है शिवांग? सर एक बकेट, सर बकेट अगर आपकी हो तो 10 लीटर की बकेट होती है. मतलब 10 10 लीटर लीटर की की बकेट होती बकेट है. है और आपकी एक जीन्स में 5000 लीटर ऑफ वाटर यूज होता है. 5000. यस आई मीन दिस यस. इज शॉकिंग यार. मतलब हम क्या करें यार, जीन्स वीन्स पहनना छोड़ दे, मतलब कैसे करें कि तुम अच्छी सी जीन्स जैसे बनाओ हाउस ऑफ जिसमें आवर्स की जीन, हाउस ऑफ आवर्स के कपड़े पहनो सर, वो 100% रिसाइकल्ड है. तो अलॉट ऑफ जो पानी जो ग्रो करने में लगता है एटलीस्ट वो यूज नहीं हो रहा. और तो हमारा जो वाटर मतलब टेबल है वो स्टेगनेंट रहता है. और बनाने में जितना लगता है वो तो धोने में भी बहुत लगता है यार, जीन्स को धोने में भी धोने बहुत ज्यादा में. लगता है. या Right. So, and you were saying also the chemical part, right? Large number of chemicals are used in manufacturing all this. सो ये सारा केमिकल यूज करने के बाद आफ्टर डाइंग इट गोज इनटू सीवेज, वो अल्टीमेटली वाटर बॉडीज में जाता है एंड विच इज वेरी हार्मफुल फॉर द एक्वाटिक एनिमल्स और द Obviously. पीपल हु आर यूजिंग इट. तो उसको भी हम रिड्यूस करते हैं. वी यूज नेचुरल डाइज मेड आउट ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स लाइक टर्मरिक को येलो यूज करते हैं हम, बेरीज से पर्पल यूज करते हैं, इनको मिक्स करके तुलसी वगैरह से ग्रीन, नीम से ग्रीन आता है. सो वी ऑल्सो डू नेचुरल डाइज सो दैट कल को अगर हम वो वाटर जो वेस्ट वाटर है हमारे नेचुरल डाइज से, इफ वी थ्रो इट इनटू पॉन्ड और लेक और सीवेज, तो वो हार्म ना करे किसी को भी. तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट उससे क्रिएट होता है. एंड टिल नाउ वी हैव सेव्ड more than 4 million liters of water till now. Right. So But that is a huge number. I remember like in our initial days when we were like just like a startup, which was not into sustainability aspects, just a revenue generating business. We were exploring a lot of south of India where these all things are manufactured and all. And I don't exactly remember the name of the country. I think Shivang would remember, but there's a story when we saw them when we went there. We saw how much waste is there in the river. Like उस जगह की हालत देखी हमने कि मतलब कितना डाई और मतलब कितना गंदगी तो फैल रहा है. बाहर की कंट्रीज में तो दे हैव द वेस्ट countries are already hit by the sustainability. कि मतलब they have started dumping the waste on our country. They are manufacturing everything in Bangladesh, India here.
तो And when we went there, we met few yeah, go ahead. environmentalists who told us about what is actually happening to their kids and what is the condition of water they are getting there, and why should we do this to our country when the other people outside have already realized that what is the larger impact of this thing. And 2016-17 की बात है, we were already तमिलनाडु में एक्चुअली था जब हम वहाँ पे थे कि plastic was banned, कि मतलब no plastic in anywhere. So I understand, So Vijay. So basically, you're talking about saving water, using certain materials. So what all materials do you use? You use recycled plastic, right? And then and bamboo. even Bamboo, recycled cotton, hemp, products made out of hemp. We're also working towards making products out of bamboo fiber, so it's in the pipeline. So maybe it'll be launching another 1 or 2 months के अंदर. So So we पहले are एक using तो these sourcing में जो material है, that is organic plus all these recycled material. alternate Then fabrics. alternate. Oh, so that's a new this name. So t-shirt I'm alternate wearing right fabric. now. Yeah, this t-shirt I'm wearing right now is completely recycled. Uh, like this is, and this nowhere lacks in fashion and quality. If you give to anyone, they like it in spite of they will not know कि अच्छा ठीक है recycle anything, but we are getting closer as much as closer we can get to the एक चीज art एक where the चीज बताओ, consumer gets it. ये जो आपने रिसाइकल बोली, आपका एक कोई वो भी है ना, कोई डिस्काउंट ऑफर सा रहता है कि अगर व्हाट इज दैट शिवांग, यू कैन रिटर्न दिस टी शर्ट So बैक टू यू, राइट? yeah, we are working on the circular economy जैसे मैंने पहले बताया. सर्कुलर So इकोनॉमी, ओके. yeah. So we are making this business model जिसमें if you have a lot of waste clothing at home और आपको जनरली पता नहीं है कि आपने उसको कहाँ फेंकना है, ऐसे किताबें होते तो लोग रद्दी में दे देते हैं या कुछ मैं कर तो देते हैं. मैं तो मैं तो फेंकता ही नहीं हूँ, मैं तो वेट करता रहता हूँ, मेरा वेट ड्रॉप होगा तो वापस वो टी शर्ट आ जाएगी मुझको. सर वो भी सही है. अगर किसी का वेट ड्रॉप करने का आइडिया मतलब इंटेंशन ना हो और उसको कपड़े देने हो या फेंकने हो रादर देन वो हमें दे, so they can earn a lot of discount. We can give 10-15% discount on our website and you can reshop the products. तो वो हम collection center में भेजेंगे, वहां से वो recycle होगा and it'll be live on our website with new products, new designs, new sections. And How ये much tonnage? sustainability How much tonnage of clothing goes waste every year? Any idea in terms of every year ऐसा globally I'll tell you, so 90 million tons of textile waste is ended up in landfills, जिसमें oh से my god. 80% is 75 to 80% is from used clothing and बाकी 25% is from जो कटिंग वेस्ट होता है स्टिचिंग के टाइम पे जो कट करके वेस्ट फेंका जाता है राइट उसमें से. राइट राइट. चलो लेट्स गो बैक टू दी स्टार्टअप. तो आपने हमें सबसे पहले सिखाया कि एक ग्रेट आइडिया होना चाहिए एंड स्टार्ट स्मॉल, डोंट स्टार्ट बिग, और जिसमें ज्यादा आपके पैसे नहीं लगे. लेकिन बाद में अल्टीमेटली फंड तो चाहिए होते हैं ना शिवांग. फिर हाउ डू यू वर्क टुवर्ड्स फंडिंग, राइट? आई मीन कैसे आप अपने आप को तैयार करते हैं? तो एक वीसी फंड के लिए या किसी प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए, जो आजकल नए नए वर्ड्स यूज होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स, इनको मतलब कैसे तैयारी की जाती है? कैन यू गिव अस सम आइडियाज टू व्हाट ऑल थिंग्स आर नीडेड टू बी टेकन केयर ऑफ? when you are ready, first timing is important. You need to time कि तुमको कब पैसे चाहिए, किस पॉइंट पे तुमको पैसे चाहिए, कितना ग्रो करना है इस पैसे से. तो वो एक क्लैरिटी होनी चाहिए. यू नीड टू हैव अ क्लैरिटी ऑन कि ऐसा नहीं है कि अब फंडिंग इज अ फैड राइट नाउ, सबको फंडिंग चाहिए, सबको पैसे चाहिए, पर डू यू एक्चुअली नीड इट, वेयर डू यू नीड टू स्पेंड इट, हाउ मच डू यू नीड इट. वो पूरा प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. पहले आपको टाइम करना पड़ेगा कि कब चाहिए पैसे, फिर आपको कितने पैसे चाहिए, वो पैसे कहाँ यूज करने हैं, उससे क्या ग्रोथ आएगी, कितने साल में ग्रोथ आएगी. सो ये छोटी छोटी चीजें हमको पूरी क्लियर होनी चाहिए बिफोर गोइंग इनटू वीसी मीटिंग, क्योंकि यू डोंट एक्सपेक्ट कि क्या क्रॉस क्वेश्चन हो जाए. इफ अगर आप किसी जगह पे अनश्योर हो तो जो अगला वीसी है उसको भी लगेगा कि भाई दीज गाइज आर अनश्योर अबाउट समथिंग, सो मे बी दे आर इन अ डाइसी सिचुएशन कि पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए या क्या है. बाकी पिच डेक शुड बी देयर. बेसिक चीजें जो होती है, पिच डेक, बिजनेस प्लान, एक अच्छा पिच डेक होना चाहिए, मैं एक प्रेजेंटेशन चीज अच्छा होना समझता चाहिए. हूँ, विजय, एंड विच वी हैव बीन एबल टू डू. पहले तो ना, जब आपका आइडिया सब चीज होता है ना, सब कुछ तैयार हो जाता है, मेंटली आप कन्विंस हो जाते हैं मुझे ये करना है, यू मस्ट इंटरेक्ट विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स. ठीक है? हाँ. जिन्होंने ये सब चीजें की है, एक मेंटर ढूंढे जो कि आपको थोड़ा सा पुश करे, जैसे मैं आप दोनों को पुश करता रहता हूँ हर बार, ये कर लो ये कर लो. ठीक है? फिर Thank बोलते you हो so much. हमने तो ये सोचा ही नहीं था. ठीक है ना? अरे फंडिंग के लिए आपको एक अतुल सर भी चाहिए.
हाँ, क्योंकि तो मतलब मतलब वो एक तैयारी करनी पड़ती है और कोई पीछे पड़ना पड़ता है, कई बार किसी को पकड़ के वापस रास्ते पे लाना चाहिए। तो यू मस्ट हैव ए मेंटर, you must interact with राइट other industries, you must also learn the model of your competitors, even वो थोड़ा सा रिमोटली भी कनेक्टेड हो, वो कॉम्पिटिटर का मॉडल समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या वो सक्सेसफुल है या उसमें कोई गैप है या कोई फेलियर स्टेटस है उसका, ये सब चीजों को देख के ही आप जो है स्टार्टअप को अपने इसमें आ सकते हैं। सो ओके फाइन। सो बेसिकली जब एक फंडिंग के लिए जाते हैं तो फंडिंग का जो भी वीसी होता है या कोई भी जो इंटरेस्टेड होता है वो क्या देखता है इन सब चीजों में कि क्या होना चाहिए स्टार्टअप में, विजय? मतलब इसका एक आंसर नहीं है, लाइक देयर इज नॉट वन एस्पेक्ट। लाइक वी आई स्टिल रिमेंबर व्हेन वी गॉट incubated and raised our seed funding, we had a proof of concept ready with us. So depends कि तुमने फंड कब रेज किया है। Rarely I see startups raising on ideation, because then investor will invest in the person. If they believe in you, they will put the money. But if you started to generate revenue, and you can show them that at this X we can grow the money, and this is the ROI, so they will invest in that way. So it depends that how you present your business and what exactly, why are you raising the fund, why exactly you need the funds, and what they are going to benefit from them, because they can invest their money anywhere in the market. Why this startup? Why should they invest in you in your business? And what is the, and if they like your idea, what you are doing exactly, and if the growth is good, and yeah, that's what they see. They invest in people, and they invest in if a good growth Right. and For technology also. invest How scalable it is, how much can it scale? So making business is one thing, but obviously you need to know how will you present that? What exactly are you not gonna get this into where you're gonna go? And one and more sir thing which add I'll add is, be in connect with lot of founders, people who have worked in it, Right, और जो मतलब और कुछ नहीं, जिनकी अपनी एक स्ट्रगल स्टोरी है, वो कम से कम आपको हेल्प कर सकते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड एज टू व्हाट आर थिंग्स यू शुड अवॉइड। They can also connect you to relevant people in the industry, right? So it is very very important. Startup journey is not about isolation कि मैं करूंगा और मेरे साथ और कोई मुझे जरूरत नहीं है, right, ऐसा नहीं है। यू नीड लॉट ऑफ सपोर्ट right, एंड यू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विजय विच आई कीप टेलिंग पीपल इज क्रिएट योर नेटवर्क। यू हैव टू मीट right. पीपल, और बहुत रेजिलियंस चाहिए, मेंटल रेजिलियंस चाहिए। इसके बारे में कुछ बताओ ना, ये तो हमने हार्ड स्किल भैया स्टार्टअप वार्टअप कर लिया, पैसे पूसे आ गए, लेकिन एक मेंटल जो एक स्ट्रेंथ चाहिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? सर इसमें बेसिकली नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग विद योर टीम या हम दोनों आपस में काम करते हैं हमारी टीम के साथ काम करते हैं तो देयर इज अ सेट ऑफ ब्रेन दैट यू हैव उससे बाहर आप नहीं सोचते बट अगर आप बाकी इफ यू मीट न्यू फाउंडर्स इफ यू मीट न्यू इन्वेस्टर्स यू मीट न्यू मेंटर्स उनके हेड स्पेस से आपको एक चीज एक क्लैरिटी मिलती है कि उन्होंने अपने लिए क्या करा है हर एक की अपनी अलग स्टोरी होती है आप किसी टेक कंपनी के पास जाओ उनकी अलग स्टोरी होगी आप किसी D2C ब्रांड के पास जाओ उनकी अलग स्टोरी होगी आप और किसी अलग टाइप के सर्विस सर्विस फोकस ब्रांड पे जाओ उनकी अलग स्टोरी होगी तो उनसे मिलो बात करते हैं अभी रिसेंटली हम भी दिल्ली गए थे जब तो आपसे मिले बाकी और फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स थे और फाउंडर्स थे बाकी कंपनीज थे उनसे मिले a lot of learning a lot of new connections आपको if you need any person any skilled person हमको मार्केटिंग के लिए कुछ लोग चाहिए थे तो we got through this network contact हम अपने अपने सेफ स्पेस से बाहर निकले वी मेट न्यू पीपल तो वहां से नए कनेक्शंस आए प्लस इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर बोला जाए तो फॉर एन इन्वेस्टर अ कंपनी इज जस्ट लाइक अ स्टार्टअप इज जस्ट लाइक अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट राइट जैसे कि क्रिप्टो है आजकल या फिर स्टॉक्स है या जिससे कुछ ROI आपको मिलता है तो startup is just another kind of thing for them so you need to be something that can scale and provide a good return a better return than other financial instruments available in market to investors so a lot of risk is involved in it but ultimately if you succeed it everything pays off so the whole hard work pays off Right, right. So देखो वो तो I agree with you. I mean, the life in startup is struggle. It's about meeting people, learning at every stage. पर mentally भी बहुत strong होना पड़ता है, right?
फिजिकली भी आपको स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आप इतने घंटे आप इन सब कामों में लगाते हैं। आई हैव सीन लोग, मेरे कुछ ऐसे फाउंडर्स जिनसे मिला मैं, जो 4-4 बजे तक सुबह जगे हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं, लेकिन थकते नहीं है वो, उनको उसमें निराशा नहीं होती, मतलब दे आर नॉट अपसेट, दे आर रेडी टू वर्क मोर आवर्स। वो कई बार मैंने देखा, वो कहते हैं 24 के 48 घंटे होते हैं एक दिन में, तो मैं इतना भी कर लेता, बिकॉज वो जो आप काम कर रहे हो उसमें इतना प्यार और अपना अपने लिए कर रहे हैं ना, तो इसलिए आपको कभी थकावट नहीं होती। और वो जो जॉब में जब जाते हैं तो ऑब्वियसली योर माइंडसेट बिकम दैट 9 to 5 इंक्रीमेंट। वो कितना इंक्रीमेंट मिलेगा, 8 से 10%। आई थिंक इंडियन इकोनॉमी जिस स्टेट में अभी, तो 10% ही मिल जाए बहुत अच्छा है। ठीक है, जॉब में फिर रॉन्ग बॉसेस, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, ये सब चीजें रहती है। तो स्टार्टअप का अपना एक अलग एडवांटेज है। और आज की तारीख में इफ यू रियली लुक, the government is also in that ecosystem helping that entire startups and promoting lot of other things, but ऐसा नहीं है, उसके बावजूद भी स्टार्टअप की स्ट्रगल है। Of So yeah, Vijay. lot of tax exemptions are also there for startups to start. Like startup, if you go on the startup in your website, you can get DPIIT registration that will get you 3 years tax exemption. That is a great initiative by our government. So yeah, resources are there if you go right in the right direction, study and acquire the knowledge. There are possibilities that you will succeed, but there's also a survival bias that if you keep doing it and don't tire off because it's your passion. So yeah, I think survival bias too favors who keep hustling. Okay. So, basically what you're saying is that it's a great place to be, right? Startup is a great idea, and if you don't want to work under anyone, and if you have a great idea, then you should do this. अभी हमारे पास में एक ये आपकी जो वेबसाइट है, हाउस ऑफ बाबास, राइट? So how do you go? What is this website? It's www.houseofbabas.com, Also, right? राइट, राइट, राइट। तो उसके बारे में बताइए कि आई मीन व्हाट एग्जैक्टली आर देयर, व्हाट काइंड ऑफ सीजन हैव यू लॉन्च्ड नाउ इन दिस? So we have recently launched our spring and summer collection is for this 2022. You can check out our website www.houseofbabas.com, and you'll see a lot of great designs over there. And all the t-shirts are 100% recycled, sustainable fashion. Once you will receive your package, you will experience a good vibe, and once you start using our products, there's no going back. And for that, we'll also provide a coupon code for everyone watching this event. So थोड़ा marketing भी हो जाए हमारी. So the coupon code is the perfect drip. So it's THEPERFECT So I think so I could write it down over there maybe. People could know. You can just give me, I will put it into Yeah. so tell me what is it? So it's a 20% discount for everyone. So everyone can apply So the perfect what is drip the coupon. code? What is the code? The A perfect drip. perfect trip. The perfect, let me THE write so that we can scroll it. The THEPERFECT perfect drip, right? Yeah. Yeah, so it's a Gen Z version of swag, the new ये concept. ये ना, ये जो विजय मेरे को बार बार हर डिस्कशन में बोलते हैं जेन जी जन, मतलब हम कौन से वाले, कोई बहुत पुराने जनरेशन के हैं क्या? मतलब किस तरीके से तुम बोलते हो भाई? मतलब हमारा भी जनरेशन कोई ऐसा बुरा वाला नहीं था, मतलब वो अभी भी जनरेशन चल रही है, एंड वी आल्सो अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, सो We are हाउस also ऑफ on the बाबास actually एंड we are also on the edge of Gen Z. right, 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 right. The perfect drip. I have just put it onto the screen. Is this right? Yeah. Perfectly right. So this is the Absolutely. code, guys, you can use to take good amount of discount from the House of Babas. Okay, guys, we are now coming to the end of the program, and was quite an eye opener. Thank you so much for joining and being part of Art of Working. And one more recommendation to every one of you is that if you want to listen to these great stories of founders, you want to understand how startup works, then you must, listen to and watch. Coffee with Founders. You can go to my YouTube channel and you can see all the old episodes of Coffee with Founder. Even this one, in case you have missed, will be added to the YouTube shortly. Right. So thank you so much, Vijay. Thank you so much, Thank you so much, Shivang, sir. for joining for this Yeah, episode of Coffee with Founders. yeah. I was looking forward to it. It was really nice.